हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is the most important here, oil refinery in India. There is a oil refinery in India is the most important topic here. The crude is the petroleum taken from the oil field need to be refined is before it can be used. You know that the petroleum is a raw material here, and crudely petroleum here. There is important to refine before the use. The petroleum is refined is the most important. Oil refining is really is a big chemical engineering industry involving a complicated process. Presently, there are 17 oil refinery in India under the public sector and one a private sector, which is the belong to be Reliance Industries. You know that Reliance Industries is the most important, the private sector here. The Reliance Industry Limited, there is an important, this refinery as Digobai, Dongai and no Matis, all are there Assam. Mumbai are the two side. Maharashtra also, and the Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Burmai and Bihar. Koyali, Gujarat and Mathura is a UP, and Panipat is a Haryana. There is a refining of their oil, and Kochi, Kerala, Mangalore is a Karnataka, and Chennai, Tamil Nadu. There is the most important spot here, the refinery of the petroleum. The only is a private oil is refineries belong to be Reliance is an industry limited. It is located at the Jamnagar, Gujarat. Jamnagar, Gujarat is the most important and spot here. This oil is refinery are the supplied the crude oil either by the ships or by the pipeline. You know that there are ships and pipeline that are supplied all over the part of the India. Third, there is the annual production showing the increasing of 10. There is a country has to be important petroleum and petroleum product to meet its requirement. There is important here. Presently, there is a 17 oil refinery in India. There is important. Presently, there are 17 oil refinery in India under the public sector, and one is only as a private sector, the Reliance Private Industry Private Limited. There is important. There is a one is a private sector only, the Reliance Industry Limited. And third, there is annual production. So on increasing 10, there is a country has to be import of petroleum and petroleum product to meet it's a requirement. You know that there is a most important point here. यहाँ पर जो हमारा आया है अत्यंत महत्वपूर्ण, देखिए भारत में तेल स्रोत संयंत्र। भारत में तेल स्रोत संयंत्र क्या है? देखिए जो पेट्रोलियम होता है वो प्राकृतिक रूप में जो है एक रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चा पदार्थ होता है। आप जो प्राकृतिक में मिलता है आप उसका उपयोग नहीं कर सकते बेखूबी। कहते हैं अगर देखा जाए तो इसमें बहुत से प्रोडक्ट जो होते हैं इसी से बनाई जाती है। इवन कि जो इस रोड पे आप चलते हो कोल टार भी इसी से बनाया जाता है, जो काला द्रव्य होता है जिससे रोड बनाई जाती है।
तो कहते हैं पेट्रोलियम के जो है जब तक हम उसको शोध नहीं करेंगे, उसकी हम इम्प्योरिटी को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है यूज़ लायक नहीं रहेगा। आपको पता है पेट्रोल से जो है डीजल, केरोसिन, ठीक है, बहुत से गैसों का उत्पादन होता है। यानी देखा जाए तभी तो इसको काला सोना के नाम से जाना जाता है कि कच्चा पेट्रोल जो ज़मीन के अंदर निकलता है उसे सीधे उपयोग लाने पहले प्राकृतिक अशुद्धियों का जो है परिक्रमण करना जरूरी पड़ता है। यानी जो उसमें जो है प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना ही जो है शोध कहलाता है। तो इसको जो है आसवन विधि द्वारा हम जो है अलग कर सकते हैं। आसवन विधि जो होते हैं आपने छोटे क्लास 8th 9th में पढ़े होंगे कि आसवन विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद अब के समय में सीबीएसई से हट गया हो, लेकिन पुराने समय में ये अवश्य था, ठीक है, आसवन विधि। पेट्रोलियम का परिकलन एक जो है जटिल रासायनिक अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी है। यानी देखा जाए तो पेट्रोलियम का जो परिकलन अलग करते हैं एक अभियांत्रिक यानी यंत्रों के द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है सागरों महासागरों कई क्षेत्रों में जो है मुफ्त पाया जाता है। तो इसको जो है निकाल के जो है इसको शोध करते हैं, तब जाके जो है हमें पेट्रोल मिलता है और पेट्रोल के उसके बाद जो है हम शुद्धिकरण करते हैं। इसमें से बहुत से प्रोडक्ट भी उत्पादन होता है। और अंतिम प्रोडक्ट की हम बात आपको पहले बता चुके हैं, कोलतार जो रोडों पर उपयोग किया जाता है वो अंतिम होती है, ठीक है। इवन कि जो वस्त्र भी पहनते हो ये पेट्रोलियम का ही एक पार्ट होता है। तभी तो कहते हैं कि नायलॉन जो होते हैं ये जब पेट्रोलियम वाले कपड़े होते हैं उनसे आग से दूर रखो, नहीं तो फटाक से जलने लग जाते हैं। कहते केवल एक शोध जो है तेल शोधक संयंत्र रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित है। और कहते हैं इसके शोध की अगर हम बात करें तो रिलायंस एकमात्र प्राइवेट सेक्टर है, यानी केवल वो एक निजी क्षेत्र है जहां पर जो है की जाती है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेशन जो है एकमात्र जो है निजी जो है शुद्धिकरण क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई, बेगाईगांवा, न्यूनामाटी तीनों संयंत्र असम में है। मुंबई में 2 इकाई है, महाराष्ट्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, कोचिन केरल, मैंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु में ये सारे के सारे जो है आपको उपलब्ध हो। यानी 17 जो है तेल शोधन केंद्र है, सिर्फ एक जो है प्राइवेट है वो है रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ओके, उसके बाद कहते हैं जवाहरनगर गुजरात में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और निजी क्षेत्र में संचालित एकमात्र जो है तेल शोधक संयंत्र है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है गुजरात कहाँ है, गुजरात में कहाँ पर, ये जामनगर में, जामनगर गुजरात में जो है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जो है निजी क्षेत्र उत्पादन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन तेल शोधक संयंत्रों को जो है कच्चे तेल की आपूर्ति या तो जहाज़ों द्वारा अथवा पाइपलाइनों के द्वारा की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये शोध संयंत्र जो है तेल शोधक संयंत्र जो है कच्चे तेल की आपूर्ति जो होती है विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, तो या तो जहाज़ों के द्वारा पहुंचाया जाएगा या पाइपलाइनों के द्वारा जो है यहाँ से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी सरल माध्यम है। इधर पेट्रोलियम उत्पाद की वार्षिक दर बढ़ती नज़र आती है, क्योंकि आपको पता है जैसे समय बीत रहा है पेट्रोलियम का जो है उत्पाद तो कम रहा है, लेकिन इसकी जो है वार्षिक दर बढ़ती ही जा रही है। तभी पेट्रोल डीजल जो है इतने महंगे मिल रहे हैं। किंतु भारत को अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के बाहर से आयात द्वारा करना पड़ता है। और भारत की बात करें तो भारत जो है दूसरे देशों से जो है आयात करता है पेट्रोलियम पदार्थ का और पेट्रोलियम का। तो आप समझ सकते हो कि भारत को जो है बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के रूप में आया है कि वर्तमान में भारत में 17 जो है तेल शोधक संयंत्र सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा एक संयंत्र जो है निजी क्षेत्र है जिसको हम बात कर चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इधर भी वार्षिक उत्पादन की गति बढ़ती नज़र आ रही है। देखा जाए तो उत्पादन की जो है बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन अभी अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत को पेट्रोल का आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में इतने अधिक पेट्रोलियम है नहीं जिसको जो यूज़ कर सके, इसलिए बाहर से जो है इसको आयात किया जाता है, जो कि बहुत ही समय के साथ बदलता भी रहा है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, नेचुरल गैस। व्हाट डू यू मीन हियर द नेचुरल गैस? You know that natural gas is the most important here. Natural gas is engineering an important source of commercially energy. There is a commercially energy only. The most of the time it's found in association with the petroleum. There is a petroleum. The recoverable is a reserve is a natural gas as on 1st April 2001 are estimated at 638 billion cubic meters here. But this is the quality will be increased as a more and more reserves are discovered at the eastern
quote are namely of Krishna, Godavari, Mahanadi basin here, and production of natural gas in 2003 to 2004 was about 31 billion cubic meters here. Gas Authorities of India was established in a year 1984. There is an important here. The Gas Authorities of India was established in the year 1984 with on the aim for processing, transporting and distributing and marketing of natural gas here. There is a most important aim here: processing, transporting and distributing and marketing of natural gas here. The company often is operate a network of cover 5,340 kilometers of natural gas pipeline in the country. There is a most important achievement here. अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है प्राकृतिक गैस। देखिए, प्राकृतिक गैस आपको पता है कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के समय में प्राकृतिक गैस जो है हर जगह यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी और भी महत्वता को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस अब जो है वाणिज्यिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर आ गया है। यानी भारत में अगर देखिएगा तो प्राकृतिक गैस का हर जगह उपयोग हो रहा है, हर रसोई घर में इस्तेमाल किया जा रहा है एलपीजी का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्राकृतिक गैस है या सीएनजी गैस जो है सब प्राकृतिक गैस है। आपको देखोगे सीएनजी का जो है बड़े बड़े जो मोबाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राय पेट्रोलियम उत्पादन में आनुवांशिक रूप से प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना बनती ही है। और प्रतिलंबे भंडार के प्राकृतिक गैस भारत में जो है 1 अप्रैल 2001 के आकलन पर आधारित है। यानी देखा जाए तो भारत में 2001 के आकलन से आधारित है और कहते हैं भंडार लगभग जो है 638 अरब घन मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी है, 638 अरब घन मीटर है। आशा की जाती है कि भविष्य में कृष्णा, गोदावरी और महानदी घाटी के क्षेत्रों में भी चल रहे अन्वेषण के प्राकृतिक गैस के अनेक भंडार को मिलने की इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार जो है हो सकता है कि आने वाला समय में मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये भंडार अगर हमारे भारत में है तो इसको आज न कल तो जरूर इसका मिलना स्वाभाविक रहेगा। वर्ष 2030 से 2004 में जो है प्राकृतिक गैस के भारत में उत्पादन करीब 31 अरब घन मीटर था। तो आप समझ सकते हो 2003 और 2004 में प्राकृतिक गैस का भारत में उत्पादन करीब 31 अरब घन मीटर था। भारत में प्राकृतिक गैस जो है प्राधिकरण की स्थापना जो है 1984 में की गई थी, यानी 1984 में की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस प्राधिकरण का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का जो है संसाधन, परिवहन, वितरण एवं उसकी सुव्यवस्थित विपणन कराना, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ उजागर की गई है। देखा जाए तो इस प्राधिकरण का उद्देश्य प्राकृतिक गैस का काफ़ी उपयोग करना है। प्राधिकरण के अधिकार जो है अधिकार एक संचालन के अंतर्गत 5,340 किलोमीटर लंबी जो है गैस पाइपलाइन भारत में बनाई गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक गैस का जो है आज के समय में उसको वितरण, संसाधन, परिवहन में काफ़ी ही महत्व रखता है। और इसकी जो है सबसे अधिक तो जो है पाइपलाइन के द्वारा इसका की जा रही है। तो आप समझ सकते हो 5,340 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बनाना आम बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। So our next topic is the most important here, atomic minerals. There is atomic minerals here. There is important. Atomic energy can be produced by fusion as a fusion. Fission and fusion of their atomics are rather the nuclear part of the radioactive mineral like uranium, thorium and radiums. India is a possess. There is a world as the largest is a reserve of monazites, the principal of source of thorium and some are reserve of the uranium. That is an important here is the atomic minerals here, and the first here uranium. Uranium is the most important here. In India, uranium is embedded in their igneous and metamorphic rock in the Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh and some part of Himalaya. You know that there is an important here. The uranium in India is uranium is embodied to igneous and a metamorphic rock. There is important igneous and metamorphic rock there is present, and mainly here Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh and some part of Himalaya. A substantial source of the uranium deposit is also found in the monazite sand along the Kerala coastals. The production of the uranium at the present is confined to be a mine at the Jadguda in the Rasigha Bhomam district of Jharkhand. There is an important here present of uranium, and the total reserve of the uranium is a country are enough to support the 5,000 to 10,000
is a MW of the electricity generating capacity. You know that there is the most important 5,000 to the 10,000 megawatt of electricity generate of capacity of there is important uranium. Uranium is important for the all of country. There is a use of the megawatt of your electricity in production. And thorium is here. Thorium is principally obtained from the monazite. The beach sand of the Kerala is a Palaghat and Kolan districts content to the world as richest monazite deposit here. It is also occurred on the sand of Visakhapatnam in Andhra Pradesh. You know that Visakhapatnam in Andhra Pradesh here. Here come to some important point, notable point. They're not in your notebooks. There is the most important in those box. The production of uranium is presently confined to be a mine of the Jadugoda and Singhbhum district of Jharkhand. India is supposed the world's largest monazite reserve as the principal source of thorium. And here the beach sand of Kerala and Palghat and the Gleniums district of contain of world's richest monazite deposit here. In India, uranium is found in the igneous and metamorphosed rock. There is an important point. There is the uranium is found here, igneous and metamorphosed rock in the Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh and some part of Himalaya. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ के बात करने हम जा रहे हैं आणविक खनिज। देखिए आणविक खनिज का क्या महत्व है, तो देखा जाए तो आणविक खनिज जो है एक परमाणु शक्ति का उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ही व्याप्त परमाणु विखंडन या विलीनीकरण से होता है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व जो है आणविक खनिज के रिगार्डिंग ही उनका जो है विद्युत शक्ति चलती है, लेकिन भारत जो है इसमें अभी अग्रसर नहीं है। भारत में कुछ ही क्षेत्रों में जो है इसका जो है चल रहा है कार्य, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट है। यानी परमाणु का जो उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ये व्याप्त परमाणुओं के विखंडन या विकलन के द्वारा होता है और इन खनिजों के अंतर्गत जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम्स आते हैं। जो भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है मेनाजाइटिस का है, यानी भारत में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार मेनाजाइटिस का है जो थोरियम का ही स्रोत होता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है इस खनिज का जो है बहुत उज्जवल भविष्य है और इसके अलावा यूरेनियम के भी भंडार हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है मेनाजाइटिस का। यदि हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम के बाद साफ यहाँ बताया गया है कि भारत में यूरेनियम जो है अग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलती है। यानी यूरेनियम जो है मुख्य तौर पर अग्नेय और रूपांतरित शैलों में स्थानांतरित जो है अंतस्थापित होकर पाए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट जो है खनिज युक्त शैल झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा हिमालय के कुछ भागों में अवश्य पाए जाते हैं। केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मैग्नेटाइट्स जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हो कि केरल का तट भी काफ़ी रिच है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरेनियम और मैग्नेटाइट्स के जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है सिंहभूमि जिले झारखंड की जो है जादूगोड़ा खदानों से किया जा रहा है और भारत में यूरेनियम के भंडार जो है 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला भविष्य जो है इन्हीं पे यूरेनियम पे ही टिका हुआ है, जहाँ पर 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है थोरियम। देखिए थोरियम क्या है, देखिए कहते हैं थोरियम मुख्य रूप से मैग्नेटाइट्स बालू में मिलते हैं। यानी थोरियम जो है मुख्य तौर पर जो है मेनाजाइटस बालू में मिलते हैं। कहते हैं केरल के जो है पालघाट तथा कोलम्स यानी किलोविलोंस में जिले में पाए जाने वाले बलुआओं में विश्व का सर्वाधिक जो है मेनाजाइटिस खनिज मिलता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बलुआओं में मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर बॉक्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बॉक्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया गया है, जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो एग्जाम में पेपर रहता है। तो पहली बात तो यही बात आता है कि वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है जादूगोड़ा के खदानों से किया जा रहा है। यानी अभी के समय जो यूरेनियम का उत्पादन जो है मैक्सिमम जादूगोड़ा के खदानों में की जा रही है, जो कि बहुत बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या थोरियम का मुख्य स्रोत जो है मेनाजाइट्स है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका भंडार विश्व में सबसे अधिक भारत में ही पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कम से कम भारत जो है मेनाजाइटिस से काफ़ी भरिपूर्ण है। यानी भारत में ही विश्व के सबसे अधिक बड़ा भंडार पाया गया है।
समुद्र तटीय बालू जिनमें जो है मेनाजाइटस मिलता है का केरल के जो है पालघाट और कोल्लम जिले में विशाल भंडार है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। अब देखिए कोल्लम जिले में सबसे बड़ा भंडार है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल के कुछ भागों में आग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं। यानी इसका भंडार मुख्य तौर पर आग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं, और मुख्य तौर पर ये यूरेनियम जो है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं के कारण जो है भारत का जो है उज्जवल भविष्य है और भारत में बहुत सी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। कहते हैं दोस्तों, जब तक हेल्प नहीं की जाता तब कुछ भी जो है आगे विकास नहीं होगा। कहते हैं हर जगह विकास में एक अकेला बंदे का हाथ नहीं होता है, हर व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में। तो अभी सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्रोत्साहित मुझे करोगे उतना आपके लिए जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, समझते हैं, उनको समझ में भी आता है और अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। और कमेंट करना अच्छी बात होता है, इससे मुझे समझ में आता है कि आपको किस प्रकार जो है गलतियां हो रही है, किस बात को उसको सुधारा जा सके, ठीक है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर पसंद आता है, बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही फ़ायदा है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो जो है बखूबी उपलब्ध है। अगर आप किसी क्लास वाइज देखना चाहते हो, टॉपिक वाइज देखना चाहते हो या सिलेबस वाइज देखना चाहते हो तो इसका भी प्रावधान है। इस पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर हर एक वीडियो जो है आपके क्लास वाइज है, आपके टॉपिक वाइज है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा।